Good evening, everyone. I'm Calvin Joseph, and I'm a research scholar from IIT Kharagpur. And today I'm going to conduct for the week 12 the problem solving and doubt clearing session for the course Electrical Measurements and Electronic Instrumentation, which was taught by Professor Abhishek Chatterjee of IIT Kharagpur. So this week we will be considering the following. So I will be teaching about what is an emitter-follower voltmeter. So before I teach this, I will also teach a little bit about the BJT and its characteristics and why we are using BJT and how, when there is a circuit which has a BJT, how do we use it to analyze the circuit, etc. Then we will consider what is a linear ohmmeter, how do we synthesize the linear ohmmeter by in the previous, the normal mode of using a voltmeter and ammeter to measure resistance, why it has certain difficulties and why do we go using a BJT based linear voltmeter. Next, we will also consider a ramp generator. Then I will be talking about Lissajous plots. This happens in cathode ray tube oscilloscopes, cathode ray tube scopes, and then we will do some example sums followed by some simulations. Okay. So this is the week 12 session. We will consider first is a emitter follower voltmeter. So this will use what is known as a BJT. The full form of BJT is, as you know, bipolar junction transistor. So BJTs are two types, NPN and PNP. So NPN transistor is given like this. This is simple of an NPN. And how do you remember what is an NPN, what is a PNP? I will just touch upon it. And this is a PNP transistor. So NPN is in which the arrows pointed outwards. In the PNP, the arrows pointed inwards. Okay. This is your collector. This is your base. This is your emitter. Okay. Similarly, this is your base. This is your emitter. And this is your collector. Okay. So NPN transistor is used in many cases, and sometimes in some scenarios we use PNP transistor. Okay. So what we have is, so it is first of all, it is a 3-terminal device. It is a 3-terminal device. As it can be clearly seen, it has a base, it has an emitter, it has a collector, etc. This is the emitter current. This is the base current. Okay. And this is the collector current. So how will we analyze this? Like we have collector current, base current, emitter current. So if we will consider this to be like a single point, single node, not, it is not, but actually it is one component. So if we do that, then we can write using KEL, I emitter is equal to the base current plus the collector current. Okay, IV is equal to IB plus IC. So this is the scenario. Similarly, over here also we have where IE is equal to IB plus IC, where IC is going out like this, IB is going like this, and this is your IB. Okay, so this is a characteristic of all these transistors. Similarly, so let us think this is my collector, base, emitter, right? So this is N, P, N. And this voltage, VBE, typically it will be around 0.7 volt, 0.6 volt, like that, in this range.
Okay, we lie in this range approximately. And why does this voltage come? If you try to understand, this is P and this is N, right? Your NPN transistor is what? N, P, N. Okay, this is your N. N, P, N. Okay. So this is your collector, this is your base, this is your emitter. You have one terminal like this, another terminal like this, another terminal like this, right? So between P and N, it is kind of like a diode. It is similar to a diode. And we know that a drop, that is that bias or the threshold cut-in voltage for diode is around 0.6 volt to 0.7. So when we try to analyze our circuit, we will assume that the VBE is 0.7 volt. And if it is not given, and if it is given specifically like it is 0.63 volt, then we will consider it to be 0.63 volt. Okay. So this is one related. Similarly, there's another relation which is very important is this the BJT is a current controlled device, current control switching device. Huh? And the collector current is a function of my base current. So base current is what, if your base current increases, then your collector current, if your base current changes, then your collector current will change. And how is that relation in an ideal sense? IC is equal to beta into IB. Okay, so beta is known as the current gain. It is the current gain of your BJT. It is ideally very, very high, but in practical reality, it will be like around 400, 500, etc. That is a limit or a constraint which is there for the BJT. So now, what is my IE? My IE is equal to IC plus IB. But my IC is what? Beta times IB plus IB. So this is equal to beta plus 1 IB. Now, in some cases, we are just trying to do some sort of approximate design. So what sometimes is considered is, since my IC is beta times IB and my IE is equal to beta plus 1 IB, since beta is very much greater than 1, we write IE is approximately beta IB, which is equal to IC. Okay. So this is the relation, which is considered in many cases. If we are not exactly given beta or something, then we can use this assumption in our sums when we are solving the sum. So this is for the certain basic equations of the BJT. Next, we will consider the emitter-follower voltmeter. Emitter-follower voltmeter. So suppose this is your VCC and this is your Vin and this is your RE. Okay. So instead of this is simply directly your voltmeter. This is your ground. This is where you apply your input. And this is where you are measuring the voltage across your voltmeter, right? So since this is the base, this is the emitter, this is the collector,
this voltage will be around 0.7 volt. Let us assume it is 0.7 volt. So what is this point? This is your VE. So your VE is actually VN minus VBE. So that is equal to VN minus 0.7. Okay. So this is the expression. So now if we apply VN is equal to 5 volt, then what will be my VE? My VE will be 4.3 volt, and that is what is measured by my voltmeter. So if I apply 5 volt, my VE will be 4.3. If I apply 10 volt, what will be my VE? My VE will be 9.3 volt. Okay. So we can see that then this is what is measured by the voltmeter. So there is an offset is present. And offset is present. Why? Because of this drop across the VBE. So if you draw the characteristics of this VN and VE, it will look like this. Sorry. It will look like this. This is 0.7 volt. So at around 2 volt, this will be 1.3 volt. At around 4 volt, this will be 3.3 volt. Okay, so there is a certain offset is present. But it is a linear scale. It is a linear graph, but it is an affine function. It is not a, there's an offset is present over here. It is a straight line, but it is not a linear function. There is certain offset. So how do we remove this offset? What could be done is, now we connect a resistor RE over here. And if we measure the voltage across this point, and this is my VN, and this is my VCC. So I can do this. This can be done, and still it will give me that particular voltage. So there might be a certain mismatch depending on the impedance of your voltmeter. Ideally, it should be infinite, but it may not be infinite. There will be certain variation will be there. Okay? But there is some certain voltage which is generated, which we can see. So my VN is there, and this is the drop 0.7 volt will be there. Now, what I can do instead of this is, I will connect this terminal to minus plus 0.7. Okay. If I do that, then what will happen? This voltage which is measured, Vx, will be equal to Vn minus 0.7 plus 0.7. So it will actually be equal to Vn. So that's why it is able to eliminate that offset. Now, one question you will ask is, we assume that VBE is equal to 0.7 volt. But what if my VBE actually is 0.72 volt? Then what will be my Vx? My Vx in that case will be Vn plus Vn minus 0.02 volt. So again, there is what is known as an error. So there's a problem. Now what is done in this case is, what we are the VCC, this is my Vn, right? RE, your voltmeter, measure Vx, this is your emitter, RE2,
This base is connected to the ground. This also is connected to the ground. So over here it will be 0.7. Okay. Now the problem is what happens is this transistor Q1 and transistor Q2. Q1 and Q2 must be identical. If Q1 and Q2 is identical, then this problem will go, the offset will get cancelled well. We don't need to know the exact value of it because it could be 0.72, etc. But in both cases, if it is 0.72, then it will cancel. So when you're designing this circuit, you should try as much as possible to make them as identical and as well matched as you can. And you should remember, like currently you're just learning the concept, but when you go higher in higher grades of knowledge, you will learn that it is not required that you should have 0.7 volt there and 0.7 volt at both sides. If the ratio of them is almost equal to 1, it is good enough. Okay, because that is what you have to make sure. It is harder to get an exact value of voltage, and it is much easier to make the ratio error less. At least that is one thing which is used a lot in design. So in this way, we are able to use such a circuit if you want to do the offset. But suppose we have this simple circuit is there. Then how will we know the input impedance? We have to find the input impedance of emitter-follower voltmeter. We have a transistor. This is your VCC. This is your resistor. This is where you apply your VA. And this is your voltmeter, which will measure your VX. Now, if you are seeing the circuit through this aspect, so you're applying an input voltage VN and you're able to see some voltage. So what is the current which is going in entering in the circuit from where you're applying your input? That is known as your IB. So your input resistance is equal to VN upon IB. So the advantage of using a BJT, what is the advantage of using BJT? This current will be high, but this current is low. That is why your input impedance will go high. It will be of a large value. Because although the actual current which is flowing through the voltmeter is of a considerable value, the actual current being drawn by your voltmeter, that is this current circuit connection, voltmeter is less. And so your input impedance is high. And the input impedance should be as high as possible. So this is one advantage. Another, but this should you should know that this input impedance changes with your VN. It is not always fixed. It will change. So the next circuit we will consider is a linear ohmmeter. Uh, so what is this used? To measure resistance. So one crude way which is used to measure resistance is we have a resistance whose resistance is to be measured. We will connect a voltmeter, a voltage source, and a voltmeter and an ammeter across it, and we will apply some voltage. Then our resistance Rx will be given by the voltage measured upon the current I which is flows to the ammeter. So Rx is V by I. But it is problematic
Why is this problematic is because first of all there are measurement errors due to the internal resistance of meters. There's a error is there because this resistance is for an ammeter, the internal resistance ideally should be zero, but there will be some finite resistance. So your voltmeter resistance should be very high, but ideally it will have some finite value. So that is one reason why there is uh, change. Okay, so that is one reason of the errors using this. And another thing is if my resistance, let us say R is equal to 1 kilo ohm, and your voltage which you apply V in is 100 volts. Okay, then what will be your current? Theoretically, the current should be 0.1 ampere. So your R measured will be equal to V in upon I, right? It is 100 upon 0.1. That comes out to be 1 kilo ohm. Now, if your R is changed to 500 ohm, but your Vn will remain the fixed. So Vn is 100, right? But what are you seeing is the current. Your focus is the current, right? You are measuring seeing the current. So your current actually you should go to 0.2, right? So it is coming in the denominator. It is not linear. So your scale for your ohm meter is like this. It is not linear. Okay, it is a non-linear scale. Because the voltage which you will apply will be fixed, but your current is inversely varying. The current I measured is inversely varying. So as you increase the resistance, then your measured current will reduce, but it is reducing non-linear, and that is resulting in the change. Okay, Sangeeta, you have any doubts? Sir, I have joined late, so Okay, I okay. can't understand. That's it. So now another session also is going on. Okay, so I'll give you a recap of what I've taught till now. So I taught what is a BJT, what are the symbols of the BJT, how is a three-terminal device, and what is the current equation. The intercurrent is IB plus IC. Then I told that this VB will be around 0.6 volt to 0.7 volt. Then how the IC and IE are approximately constant because the IB is very low. Then I taught the emitter-follower voltmeter. So if I apply this some voltage here, input voltage if is applied over here, then here what is this VE will be equal to V in minus this VB, this 0.7. Okay, so the results in what is known as an offset. That is one problem with this. So what is done is we need to cancel out this offset. So this will not cancel the offset. And this is a circuit which we can use.
So now it is clear that you will be measuring the voltage across your resistance, and because it is changing inversely, because your current is changing inversely, it is very hard for you to it is a non-linear scale. Now what can be done is, if you have a resistor and if you have a current source I, right, and then you measure the voltage here. So your voltage is what going to be R into I. So in this way, since your R is fixed, so if your no, your I is fixed, R will vary. So your V is directly proportional to R, and this is what you are measuring. So you can say from the voltage, you can say what is the actual resistance being measured. You can say what is the RH. Okay. But what is the difficulty? We need to need a current source. So in most practical real life, we don't have a current source. We usually have to generate a current source using a voltage source. Just hold on 1 minute. We need to generate a current source. So we will make it using this method. Let us say this is a BJT, NPN BJT. Let us say this voltage at the base is fixed. Let us say it is 5.7 volt. Okay. This VB drop is 0.7 volt. So over here the voltage will be 5 volt. Then I have a resistor RE, right? My RE, let me take it to be 1 kilo ohm. So my IE, that is the current IE flowing here, is equal to VE upon RE. That is 5 upon 1 kilo ohm. So this is 5 milliampere. Okay, it is 5 milliampere. Suppose, so I found out my IE is 5 milliampere. Now let us say this is the resistance Rx, which you want to measure. This is your VCC. So then there will be some current IC, and using a voltmeter, you will measure what is the voltage over here, right, across the resistor. So this IC is approximately equal to IE. So my IC is approximately 5 milliampere. Okay. So in this way, the current which is flowing, this current which is flowing through the resistor is a constant. Okay, it is like a constant current is flowing. And in this manner, you can generate you can measure the voltage, and thus you can get the current, the resistance which is proportional to the measured voltage. Now, how will we generate this 5.7 volt? For this, we will use a potential divider, and we will tap it over here. This also, so that this will be 5.7 volt. So this R1 and R2 must be controlled. So this R1 and R2 must be controlled, that the voltage over here should be 5.7 volt. Now, can you tell a way in which okay, so there's another difficulty in this circuit is this voltage over here should be higher than this voltage 5 volt, and this VC should be greater than VB.
This is a requirement. So you have, so that means your VC should be greater than 5.7 volt. So let us assume a VC is approximately 6 volt. So this is 6 volt right here. This VCC is 15 volt. So the drop IE into RX should be less than 15 minus 6. So IE into RX should be less than 9 volt. Okay, this is a your IC into RX should be less than 9 volt. So that's why this will limit the range of R that can be measured. So if I want to change the range, okay, if I want to increase or decrease the range, what I can change is I can change IE, I can change IC, or I can even change VB. So one way is I can change RE, I can vary RE such that my current value will change, and then accordingly the drop will change. Another is I can vary this. If I vary this means I'm varying this, and if I'm varying this, I'm varying this. Okay, so this is another method which we can use to vary the current which is being drawn, and thus vary the thus change the range or the resistance that can be measured. Hmm. So is there any doubt in this? No, sir, no doubt. Okay. Next, we will go to what is known as a ramp generator. So what is a ramp generator? What is a ramp? A ramp signal is something which is going like this, falling down, going like this, falling down, going like this, falling down. Okay, this is the lower point. This is the upper point. It is a periodic signal with a time period t and a frequency of f. Okay, where f is equal to 1 by 2. So we want to generate such a signal. What would be a good way to generate such a signal? Let us consider capacitor. Okay, this is a current to the capacitor, and there's a voltage across the capacitor, right? So what is the relation between the current and voltage? In a capacitor? I submitted. I See into integration. He confirmed. B. D. This is the equation. Can you check it? हाँ सर ये तो ठीक ही तो लग रहा है हाँ ठीक ही होगा अच्छा नहीं मतलब यही इक्वेशन है नहीं कैपेसिटर का करंट का इक्वेशन क्या है I इक्वल टू C dV by dt ये इक्वेशन है ना हाँ हाँ वही है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करेंगे तो V इज इक्वल टू आई इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इंटू 1/c हाँ V इक्वल 1 by C I into dt तो ये है इक्वेशन कैपेसिटर के लिए तो अगर मेरा I आप मान लो
अगर मेरा आई इक्वल टू 10 एम्पियर हो गया, ठीक है, फिक्स्ड डीसी वैल्यू दिया, तो क्या होगा वोल्टेज 1/c इंटीग्रेशन ऑफ, समझ लो जीरो से स्टार्ट करो, तो 10 × dt, 1/c इंटू 10 × t हुआ, ठीक है। तो ये सिग्नल ऐसा बढ़ते जा रहा है, तो ये बढ़ते ही जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं। पर हमको क्या सिग्नल चाहिए, हमको हमारा जो सिग्नल रहना चाहिए वो ऐसा जाना चाहिए और गिरना चाहिए, फिर वापस ऐसा जाना चाहिए, फिर गिरना चाहिए। तो ऐसा सिग्नल जनरेट करना है, ठीक है। तो एक चीज है कि जो वोल्टेज का इक्वेशन है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी प्लस वी ऑफ जीरो माइनस, ठीक है। ये है टाइम जीरो माइनस टाइम टी एन, जितना जब ये करंट आ ही रही है, ठीक है। तो अगर मेरा वी ऑफ जीरो माइनस जीरो है, तो वो यहाँ से बढ़ते जाएगा, हाँ। अगर मेरा वी ऑफ जीरो माइनस मेरा अगर 5 है, तो यहाँ से बढ़ते जाएगा। अगर मेरा वी ऑफ जीरो माइनस है -5, तो फिर वो यहाँ से बढ़ते जाएगा, ठीक है, ऐसा। पर वो बढ़ते ही जाएगा, वो कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि ये सर्किट जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सर्किट है जिसमें एक करंट सोर्स है आई और एक कैपेसिटर है, और हम लोग ये वोल्टेज मेजर कर रहे हैं कैपेसिटर के अक्रॉस। तो जो आई है वो अगर हम लोग 10 एम्पियर दिया और फिर ये कैपेसिटर है, तो वोल्टेज ऐसा बढ़ते जाएगा। पर ये थोड़ा काम कर रहे हैं, थोड़े काम हमारा, हमको क्या चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, ऐसा स्ट्रेट लाइन वापस जीरो, ये चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो करंट है वो ऐसा रहेगा, इधर एक सी रहेगा और इधर एक स्विच रहेगा, ठीक है। तो इस टाइम से इस टाइम वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, और थोड़े टाइम के लिए ये स्विच क्लोज होगा, तो जब ये स्विच क्लोज होगा क्या होगा, ये करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा। तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, वोल्टेज जीरो हो जाएगा। वापस स्विच को ऑफ, इस इस टाइम पे, इस टाइम छोटा टाइम के लिए, छोटा सा टाइम के लिए ये स्विच बंद हो जाता है, ये स्विच बंद हो जाता है। तो फिर ये वापस बढ़ते लगते हैं, फिर वापस कम, फिर वापस जाना। तो जो मेरा स्विच है वो वापस यहाँ पे ऑन हो जाता है, इधर भी वो ऑन हो जाता है, इधर भी वो ऑन हो जाते हैं। तो जब भी वो ऑन हो जाते हैं, वो ये लोअर पॉइंट तक लेके जाना चाहिए, और यहाँ पे लोअर पॉइंट है जीरो। अब ये स्विच ऐसे बंद हो जाता है। तो ये सर्किट हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग को एक करंट सोर्स चाहिए, उसके बाद एक स्विच भी चाहिए, और ऐसा ट्रिगर्स भी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर, पहले एक ये हम लोग एक कैपेसिटर लगा रहे हैं, ठीक है। मान लो कि एक करंट सोर्स है जो कैपेसिटर से करंट भेज रहा है। हम्म? इसके बाद हम लोग एक स्विच ट्रिगर लगाते हैं, और इसके बाजू में हम लोग एक ये लगाते हैं, एक बीजेटी, जो हमारा स्विच है, ये हमारा स्विच है, ठीक है। तो जब भी ये स्विच खुला है, खुला है मतलब क्या, अभी करंट जीरो चल रहा है, इस समय करंट जीरो है। तो तभी अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे प्लॉट, जैसे बढ़ते जा रहा है, और ये जो स्विच है वो जीरो है, स्विच ऑफ है। अभी जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है ना, जो बीजे इसका अपर ट्रिगर पॉइंट है,
तो क्या होता है कि स्विच ऑन हो जाती है, ऑन हो जाता है। और जब ये ऑन हो जाते हैं, बीजेटी ऑन हो जाते हैं, और जो करंट है ना वो यहाँ से ले जाने लगता है। तो यहाँ पे करंट, पूरा करंट जाने लगता है। और जो आपका वोल्टेज है ना वो ऐसा गिरेगा, वोल्टेज आपका गिरेगा। कब तक गिरेगा? आपका लोअर ट्रिगर पॉइंट तक। जब ये लोअर ट्रिगर पॉइंट के पास आ जाते हैं ना, तभी ये वापस ऑफ हो जाते हैं। तो जब ये वो वापस ऑफ हो जाते हैं, ये वापस बढ़ते जाएगा। ये बढ़ते जाएगा, और जब ये वापस इस पे लग जाते हैं, तभी क्या होगा, वो गिर जाएगा, वापस बढ़ते जाएगा। और जब भी इस पॉइंट अपर ट्रिगर पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो वो फिर वो ये ऑन हो जाता है, थोड़ा टाइम के लिए स्विच ऑन हो जाता है, पूरा करंट यहाँ से फ्लो हो जाता है। और जब ये लोअर ट्रिगर पॉइंट पहुंच जाते हैं, वापस ट्रिगर हो जाते हैं। तो इस तरह हम लोग ने एक रैंप जनरेट किया है। इसमें कोई इश्यू है? नो सर। हाँ, ठीक है। तो ये करंट सोर्स, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, और एक रेसिस्टर यूज करते हैं। और ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। ये आपका वीसीसी भी कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो ये आपका, ये हो जाता है आपका, आपका जो प्लस माइनस वीबी ये रहेगा ना, तो आपका -0.7 वोल्ट है। कि ये आपका पी है, ये आपका एन है, ये आपका पी है। तो पी पे ज्यादा वोल्टेज जाना चाहिए, तो आपका वीबी -0.7 वोल्ट हो जाता है। इसी से अगर हम लोग ने मान लिया, यहाँ पे हम लोग ने सेलेक्ट किया 10.3 वोल्ट, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, 11 वोल्ट हो जाएगा। और आपका यहाँ पे अगर 15 वोल्ट है, ठीक है, ये आपका आर एक्स है, आर कुछ या R1 समझ लो, R1। तो ये जो करंट है ना, ये जो करंट, वो हुआ आपका 15 - 11/R1। तो ये आपका करंट हो जाता है। और ये आपका कौन सा करंट है? एमिटर करंट। और ये यहाँ से आपको कलेक्टर करंट चाहिए। तो ये आपका कलेक्टर करंट हो जाता है। तो ये जो आई है ना वो फिक्स्ड हो जाता है। तो ये आपका करंट सोर्स हो जाता है। तो हम लोग फिर ये इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग ये कैपेसिटर लगा देते हैं। तो मतलब फिक्स करंट जा रहा है। और उसको करंट को अगर हम लोग को बाईपास करना है, तो हम लोग एक बीजेटी लगाते हैं, और उसमें ट्रिगर हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें कुछ इश्यू है? सर इसमें पीएनपी की जगह एनपीएन लगाने से क्या दिक्कत हाँ, अभी अगर ऊपर वाला सर्किट में अगर आप देखोगे, ये वाला सर्किट में हम लोग को करंट, ये करंट आई ई जो है, ये करंट हम लोग फिक्स कर रहे हैं। हाँ, और ये करंट फिक्स होने की वजह से ये करंट भी फिक्स हो रहा है। हम्म? पर हमारा जो ये वोल्टेज जो हम लोग है, ये नॉट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये ग्राउंड की रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें भी हम लोग आई ई, ये तो आई ई करंट ही है जो हम लोग फिक्स कर रहे हैं। आई को हम लोग फिक्स कर रहे हैं ना, ये आई को हम लोग फिक्स कर रहे हैं। पीएन भले पीएनपी है, पर हम लोग आई को फिक्स कर रहे हैं। तो हमारा जो आईसी है ना, जो आईसी करंट है वो भी फिक्स हो जाता है। तो दोनों केस में हम लोग आई करंट फिक्स कर रहे हैं। सिर्फ अगर हम लोग को जो ये जो कैपेसिटर का जो सर्किट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो हम लोग को पीएनपी यूज करना पड़ता है उसके लिए। नहीं तो हम लोग वो प्रीवियस सर्किट भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। इट्स डाउट। नो सर। ठीक है, अभी और एक चीज में हम लोग बात करेंगे, जो है लिसाजाउस प्लॉट्स। ये लिसाजाउस प्लॉट्स क्या होते हैं? आपने ये सुना है? नहीं सर। ये एक्चुअली सर ने लास्ट वीक सिखाया था। ये है ऑस्लोस्कोप में आ जाते हैं, ऑस्लोस्कोप के 1 या 2 लेक्चर में है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्स वाई मोड यूज करते हैं, एक्स वाई मोड। ठीक है। तो एक बात ये थी, सपोज हमारा जो सिग्नल है एक्स पे, वो आपका 1 into sin of 2 into पाई into 1 into t। ओके, तो बेसिकली आपका एक्स हुआ 1 into sin 2 पाई f t प्लस 5। समझ लो, ये 2 पाई f1 t प्लस 5 1, और ये आपका a1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये उसका एम्पलीट्यूड है, हाँ, और ये उसका t है, और इसका फाई अभी 0 डिग्री है। पर अगर हम लोग के पास और एक सिग्नल आ जाते हैं जो ऐसा है, ठीक है, इसका फाई हुआ आपका 90 डिग्री। तो ये थोड़ा डिलेड है, इसके साथ डिलेड है। इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम ऐसा है, लेकिन वो मतलब रिसर्चर्स प्लॉट का क्या मतलब ये हमें समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है, वही वही मैं बता रहा हूँ अभी। तो ये आपका अगर वाई, जो आपका ये वाई हुआ आपका a2 sin of 2 पाई f t प्लस 5। तो आपका जो 5 है वो 90 डिग्री हो गया। हाँ, तो वैसा आपका फेस शिफ्ट आ सकता है। अभी अगर हम लोग एक्स वाई प्लॉट करते हैं, तो इन दोनों में ना हर बार ये टाइम है, एक्स एक्सिस में टाइम है। ये आपका सिग्नल सिग्नल 1 है, ये आपका सिग्नल 2 है। ये प्लॉट है सिग्नल 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये प्लॉट है सिग्नल 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि मेरे को सिग्नल 1 और सिग्नल 2 का प्लॉट चाहिए, सिग्नल 2 विद रिस्पेक्ट टू सिग्नल 1, तो ये कैसा मिलेगा? ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे 0, मतलब क्या आपका सिग्नल 1 यहाँ पे 0 है, और इस टाइम क्या है, आपका सिग्नल 2 क्या है, माइनस है। मतलब इस समय जो मैं बोलूँ, ये टाइम पे आपका सिग्नल इधर रहेगा, क्योंकि आपका सिग्नल 1 का वैल्यू 0 है और सिग्नल 2 का वैल्यू इतना है, तो उधर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इधर समझ लेते हो तो आपका सिग्नल 1 पॉजिटिव है, सिग्नल 2 नेगेटिव है, पर वो फिर वो इधर आ जाएगा। अगर हम ये टाइम के लिए देखते हैं, ये टाइम और ये टाइम, तो आपका सिग्नल 2 0 है, मतलब जो ये स्केल में है वो 0 है, और सिग्नल 1 कुछ वैल्यू है, तो वो इधर आ जाते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग ये पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आपका सिग्नल 1 पॉजिटिव है, सिग्नल 2 भी पॉजिटिव है, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं, तो आपका सिग्नल 1 0 है और सिग्नल 2 आपका पॉजिटिव है, तो मतलब इधर हो गया। हाँ, तो इस हिसाब से अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगर हम लोग ये पॉइंट पे देखेंगे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, वो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा।
तो आपका क्या बन जाता है, आपका एक सर्कल बन जाता है, या एक शेप शेप आ जाता है, एक शेप आ जाता है। इतना समझ में आया? हाँ। इसके लिए ना मैं एक्चुअली सिमुलेशन ही और अच्छा है समझाने के लिए। तो ये मैं एक मैटलैब कोड लिखा हूँ आपको समझाने के लिए। इसमें जो एम्पलीट्यूड है दोनों का फिक्स्ड है, ठीक है, मैं प्लॉट राइट। अच्छा, तो ये पूरा इंटरप्रेट किया हूँ मैंने, तो चीज डाला चाहिए था। ये होगा एक से। तो अगर आप देखोगे, ये आपका एक्स का सिग्नल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपका टाइम है, तो एक्स का सिग्नल एक साइन वेव जैसे जा रहा है, और ये आपका वाई है, वाई का सिग्नल ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो दोनों सिग्नल का टाइम पीरियड सेम है। तो जब भी हम लोग एक्स जीरो पे है, वाई वन पे है, ठीक है, ये पॉइंट, ये जीरो पे है और ये वन पे है, तो आपका एक्स एक्स जीरो पे है और वाई वन पे है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। फिर आपका एक्स किधर गया, आपका एक्स यहाँ पे गया, या हम लोग, आपका एक्स यहाँ पे गया, आपका वाई इधर गया, तो आपका एक्स कितना हुआ, 0.6 वैसा कुछ, तो आपका एक्स 0.6 हुआ, और आपका वाई कितना हुआ, वन से थोड़ा कम, तो मतलब ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी अगर लोग ये पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे आपका वैल्यू क्या है, वन है, वन अप्रोक्सीमेटली 0.99 है, और यहाँ पे आपका वैल्यू क्या है, जीरो है। तो आप मतलब आपका एक्स वन है, और आपका जो वाई है ना, वाई ये एक्सिस है ना, जो जीरो हो जाता है, तो इस हिसाब से ये चेंज होता है। हम्म। इसमें कुछ इश्यू है? नो सर। ठीक है। तो अभी मैं चेंज करता हूँ इसका फेस शिफ्ट। अगर इन लोग के बीच में जो फेस शिफ्ट है वो जीरो था, तो क्या होगा, फेस शिफ्ट जीरो है, मतलब जब भी एक्स वन है वाई भी वन रहेगा, ठीक है, तो एक्स वन है वाई भी वन है। जब भी वाई जीरो है एक्स जीरो है, तो इधर भी एक्स जीरो है वाई भी जीरो है। जब भी आपका एक्स माइनस वन हुआ वाई माइनस वन हुआ, तो यहाँ पे सेम हो गया। हाँ, तो जब भी फेस शिफ्ट जीरो है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। हम्म। अभी मैं क्या करता हूँ,
मेरे जो फेस शिफ्ट है वो सेम रखता हूँ, एम्पलीट्यूड में बदल देता हूँ। तो अभी क्या चेंज हो गया, ये अभी 0 to 5 जा रहा है और एक्स हमारा जा रहा है 0 to 1। ठीक है, तो जब भी आपका एक्स जीरो है, एक्स जीरो है, वाई जीरो है, तो यहाँ पे आया। अभी यहाँ पे क्या हुआ, आपका वाई 5 है और आपका एक्स 1 है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आपका वाई 5 है और आपका एक्स 1 है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। तो यहाँ पे आपका वाई 5 है, एक्स 1 है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे -5 है और ये आपका 1 है, -1 है। तो यहाँ पे जब -1 हुआ, एक्स -1 हुआ, तो आपका वाई -5 होगा। तो वापस से और एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये लाइन का स्लोप क्या है, ये जो लाइन का स्लोप कितने हैं, हम्म? 5/-। ये हुआ 5/1, तो इसका स्लोप है 5। ठीक है, ठीक है, ये आप बाद में चेक करो। तो दूसरा बात है कि अभी, जैसे कि सर एक मतलब जब सेम मैग्नीट्यूड पे चल रहा था, फेज भी सेम हाँ था, तो भी हाँ स्ट्रेट लाइन आया था। और हाँ अगर हाँ, मैग्नीट्यूड डिफरेंस ले रहे हैं, फिर भी मतलब स्ट्रेट लाइन ही आया, खाली स्लोप का डिफरेंस हो रहा है, यही ना। हाँ सही सही सही, स्लोप का ही डिफरेंस है। हाँ, सही बोला। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड सेम रखता हूँ और जो फेज शिफ्ट है मैंने इसको 30 डिग्री बना देता हूँ। तो क्या होगा, ये एक्स और वाई के बीच में जब भी एक्स जीरो है, हाँ, तभी आपका वाई जीरो नहीं है। वाई को वाई थोड़ा जल्दी है, तो जब भी वाई जीरो है, एक्स अभी तक पॉजिटिव है, मतलब 30 डिग्री लोग के बीच में फेस अंतर है, फेशियल अंतर है। तो इस जब ये ऐसा होगा ना, तो आप देखोगे एक एलिप्स बन गया, एक एलिप्स जैसा बन गया। हाँ, एलिप्स ही बना ना। हाँ सर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका फेस जो 30 डिग्री लीड था उसको मैं डिले कर दूँ, -20। तो क्या होगा, क्योंकि अब हम लोग का एलिप्स ही है, शायद से शेप में थोड़ा चेंज हुआ रहेगा, इतना ठीक से दिख रहा नहीं है। अभी हम लोग जो फेस शिफ्ट जो -30 है ना, उसको मैं -60 कर दूँ। तभी क्या हुआ, ये चेंज हो गया, एलिप्स चेंज हो गया, थोड़ा अलग हो गया। फेस शिफ्ट तो भले माइनस, फेस शिफ्ट तो 60 हो गया, पर ये एलिप्स जो बन रहा है थोड़ा अलग बन रहा है। हम्म, अभी हम लोग क्या करते हैं, जो फेस शिफ्ट है ना उसको -90 करते हैं। अगर हम लोग -90 तो करते हैं अब सर्कल तो बन जाएगा। सन सर्कल बन गया, सर्कल बन गया। अभी मैं इसको -120 कर देता हूँ। -120 है, तो अभी एलिप्स थोड़ा चेंज हो गया, मतलब वो रोटेट हो रहा है, थोड़ा रोटेट हो गया। अभी मैं इसको -150 कर देता हूँ, तो और वापस थोड़ा रोटेट हो गया, थोड़ा श्रिंक भी हो गया, और फिर मैं इसको -180 कर देंगे। अगर -180 करूंगा तो क्या होगा, तो भी सर्कल ही दिखना चाहिए। अच्छा हम लोग देखेंगे। तो एक लाइन हो जाता है, ये और ये ऑपोजिट है।
हम लोग बोलते हैं ना 180 डिग्री टर्न हो जा रहे हैं, मतलब 180 डिग्री अच्छा, मतलब वो फेस सर्किल नहीं रिवर्स होगा। हो गया। 180 मतलब फिर 0 डिग्री हो जा रहा है। नहीं, वो 0 डिग्री नहीं है, वो पूरा ऑपोजिट हो गया, पूरा उलट गया। हाँ हाँ, मतलब ऑपोजिट। हाँ, वही। ठीक है। पहले स्ट्रेट लाइन वहां से, मतलब इधर से इधर हो रहा था, अभी स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ उल्टा स्लोप। हाँ, उल्टा हो गया, सही सही, वही हुआ। ठीक है। तो वैसे अगर हम लोग आप वैसे अगर फेस को और चेंज कर देते, हम्म, तो भी कभी वैसा वापस से एलिप्स बनते जाएगा। हाँ, वैसे चेंज होते जाएगा। अगर हम लोग 270 करते हैं, मतलब -90, तो फिर वो वापस सर्कल बन जाते हैं। हाँ, और वैसे होते जाएगा। फाइनली अगर आप 360 डिग्री घुमाते हो, तो वापस और एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। हाँ, तो इस तरह हमारा जो ये प्लॉट हो जाते हैं, जब भी हम लोग एक्स और वाई प्लॉट करते हैं, इसको लिसाजस फिगर्स बोलते हैं। तो ये जो प्लॉट बन रहा है ना ब्लैक कलर का, उससे आप बता सकते हैं कि फेस इन फेस है कि 180 डिग्री फेस शिफ्ट है, कि थोड़ा फेस एंगल है कि नहीं, वैसे बनते हैं। हाँ, तो ये हुआ जब भी इन लोग का एम्पलीट्यूड सेम है। और मानो क्या हुआ अगर फ्रीक्वेंसी अलग है, अगर फ्रीक्वेंसी अलग है तो क्या होगा। तो अगर आप इधर देखोगे, तो ये आपका इनपुट है, ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई है, इस पे भी चेंज करना होगा। ये आपका एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें फेज एंगल भी आ गया। ठीक है, इस केस के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा वाई वन से स्टार्ट हो रहा है, एक्स जीरो है। तो जब भी वाई वन है, आपका वाई वन है, तभी आपका एक्स जीरो भी हो सकता है। हाँ, आपका वाई वन है, आपका एक्स जीरो पे है। फिर आपका वाई घटते जा रहा है, आपका एक्स बढ़ते जा रहा है, तो आपका वो ऐसा गिरते जाएगा। ठीक है। इस टाइम पे आपका वाई जीरो है और आपका एक्स कुछ वैल्यू है, ठीक है, एक मतलब 0.4 हो गया, 0.45। तो यहाँ पे आपका वाई जीरो है, आपका एक्स 0.45 हुआ। फिर आपका वाई नेगेटिव होते जा रहा है और आपका एक्स बढ़ते जा रहा है, मतलब एक्स बढ़ते जा रहा है मतलब ऐसा, वाई नेगेटिव मतलब ऐसा, तो वो ऐसे ही जाता है। ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो कर्व जो आ रहा है ना, उस हिसाब से आपका ये वाला कर्व आ जाएगा। उसमें इसको कुछ क्या से बोलेंगे? ये शेप पता नहीं है, ये जो एकदम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप है। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी इससे हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, हम लोग को मालूम पड़ेगा कि दोनों का फ्रीक्वेंसीज पहला तो अलग है, ये बात है। और क्या रेशियो में ये आ रहा है, वो भी हम लोग को मालूम पड़ सकता है। ठीक है। इसके लिए हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो शेप है ना, जो शेप है, तो शेप है हमारा, शेप लगभग, आई थिंक मेरा ड्राइंग खराब है पर ड्रॉ करता हूँ। ऐसा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है ना।
ये सही नहीं है। Check. ये ऐसा एक कर्व है, हाँ? इसको मैं अगर स्निप करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ। ये मेरा कर्व है, ठीक है, ये है मेरा कर्व। इस पे मेरे को एक टेंजेंट रखना होगा। ये हुआ मेरा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ये तो सही है। टेंजेंट है ना, टेंजेंट मतलब क्या? टेंजेंट का मतलब क्या? टेंजेंट मतलब वो सर्किल के मतलब पेरीफेरी के ऊपर एक जाता है ना जो कट करता है। वो कट नहीं करते, वो टच करते हैं। यहाँ हाँ पे वही अगर मतलब देखोगे, जस्ट टच करता है। वो जस्ट टच करते हैं। और जहाँ पे वो टच कर रहे हैं, मतलब वो 90 डिग्री एंगल पे है, इसलिए टेंजेंट हो जाता है वहां पे। ठीक है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल, ये इसको बोलते हैं, ये जो इस तरह रहता है ना, इस तरह रहता है, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कितना बार टच हो रहा है? वो हुआ 3 बार। ठीक है, 3 बार टच हो रहा है। अभी हम लोग एक वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ, जो वर्टिकल टेंजेंट है वो कितना बार टच कर रहा है? 4 बार। नहीं, क्यों 4 बार? एक ही बार टच कर रहे हैं ना, यहाँ पे ही टच कर रहा है ना। हम लोग को तो सिर्फ, फिर हॉरिजॉन्टल का टाइम कैसे लिए, ऊपर और नीचे और एक बार? नहीं, हम लोग को किसी कर्व पे, किसी भी कर्व पे एक ऐसा और एक ऐसा लेना है। एक ही जगह से एक ही लाइन लेना है। मतलब हम लोग को ऐसा नहीं कि हम लोग को इधर भी लेना है, इधर भी लेना है, इधर भी लेना है, ये जरूरत नहीं है, ये सब नहीं है। हम लोग को वो पूरा जो फिगर है ना, उसका एक एक्सटर्नल पार्ट, बाहर साइड से हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना है। अच्छा तो फिर हॉरिजॉन्टल का टाइम कैसे 3 हो गया? क्योंकि यहाँ पे 3 बार टच हुआ ना, यहाँ पे भी टच हुआ, यहाँ पे भी टच हुआ, यहाँ पे भी टच हुआ। ओ अच्छा अच्छा ये वाला बात। हम्म। तो वर्टिकल टेंजेंट में कितना बार टच हुआ वो? एक ही पॉइंट टच कर। एक ही पॉइंट टच हुआ। तो इससे ना हम लोग को मालूम पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी का रेशियो। तो फ्री तो जो वाई सिग्नल का फ्रीक्वेंसी अपॉन एक्स सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बाय वर्टिकल टेंजेंट। तो अगर आप देखोगे इसमें, एक्स का फ्रीक्वेंसी, अगर एक्स का फ्रीक्वेंसी और वाई का फ्रीक्वेंसी कितना है एक्स का फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट टू? पहला किसका फ्रीक्वेंसी हायर है? तो इस पे दिखेगा कि वाई का फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई is 3 times the frequency of x. And hence, it is matches with this assumption that fy is equal to 3 times of x. Okay. So this is about Lissajous figures. Now we will start solving the assignment questions.
Assignment 12. Question 1. तो यहाँ पे इन्होंने दिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इज 400 हर्ट्ज, हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई ढूंढना है। सॉरी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी मैं असाइनमेंट समझ पे जा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इन्होंने बोला कि एक्स का फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस वाला सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है और वाई एक्सिस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हम लोग को ढूंढना है। तो भी ये हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तुम्हें बोला कि हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ, तो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है? ये सर वर्टिकली तो 3 बार टच हो रहा है। हाँ, अभी अभी वर्टिकली 3 बार टच करें तो वर्टिकल टेंजेंट इंटरसेक्शन वो हमारा 3। अभी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एक ही बार टच कर रहे हैं यहाँ पे, ये हुआ आपका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट इंटरसेक्शन, ये हुआ आपका 1। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल टेंजेंट इंटरसेक्शंस पर वर्टिकल टेंजेंट इंटरसेक्शंस। ये आपका एफ वाई अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/3। तो आपका एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन 3, तो ये आपका 400/3। तो ये कितना हुआ? 133 हाँ, ये हुआ आपका 133.33 हर्ट्ज। ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडिया देना चाहिए कैसे सॉल्व करना है उसको। ठीक है। और एक अच्छा वीडियो है जिसमें इसमें और अच्छे से दिया है, मैं भेजता हूँ, लिंक भेजता हूँ। चैट पे मैं डाल रहा हूँ ये लिंक फॉर दिस आर्टिकल्स। तो रोरेन श्वार्ट्ज करके एक कंपनी है जो ऑस्लोस्कोप बनाते हैं। इन लोग ने एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बनाया कि कैसे लिसाजोस फिगर से हम लोग कैसा फेज निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी का रेशियो भी कैसे निकाल सकते हैं, ये सब भी दिया हुआ है। ठीक है। वो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको और पढ़ना है इसके बारे में। पर मेरे को अच्छा लगा, उससे मेरे को थोड़ा आइडिया और अच्छा हुआ। हम्म। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ।
ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन। कितना साइकिल्स हम लोग को देखते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स। इफ यू वांट टू सी 10 कंप्लीट साइकिल्स तो 10, वो 50 हर्ट्ज पावर लाइन सिग्नल, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। then oscilloscope, how much then should be the frequency in hertz of the time based signal of the oscilloscope। तो हमको पहला क्या देखना है वो हमको आइडिया आना चाहिए। हमको ये सिग्नल देखना है, हाँ? ये सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हुआ 50 हर्ट्ज और इसका कितना साइकिल देखना है, 10 साइकिल देखना है। तो हमको ये पूरा देखना है, ये पूरा ऐसा जो जा रहा है ना, पूरा इसका हम लोग को कितना साइकिल्स देखना है, हम लोग को टोटल 10 साइकिल देखने हैं। तो कितना टाइम देना पड़ेगा, इस कितना टाइम देना पड़ेगा, जो टाइम टोटल should be equal to the number of cycles into the time period, number of cycles divided by the frequency, number of cycles 10 है, frequency 50 है। तो जो टोटल टाइम जो हम लोग को देना पड़ेगा वो आपका 1/5, वो आपका वो 0.2 सेकेंड। तो तभी ना क्या होता है, हम लोग का ऑसिलोस्कोप में एक ऐसा टाइप का एक रैंप सिग्नल आएगा, जो ये पूरा टाइम टोटल टाइम के लिए वो देना चाहिए, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, इसका फ्रीक्वेंसी होगा 1/t टोटल। तो इसका वैल्यू क्या है, सर 5। हाँ ये हुआ आपका 5 हर्ट्ज। ठीक, ठीक है। तो ये सब आपको आपको समझना चाहिए, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर समझो लोग क्या बोल रहे हैं और फिर विजुअलाइज करो और फिर आंसर करो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, इफ टू साइनसॉइडल सिग्नल्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड द सेम फेस एंगल are applied to the XY channels of an oscilloscope, then the curve seen on the screen will be, कौन सा कर्व दिखेगा, क्या एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, कि एक एलिप्स विद इट्स मेजर एक्सिस ऑफ 45 डिग्री टू द एक्स एंड वाई एक्सिस, कि एक सर्कल दिखेगा, कि एक एलिप्स विद इट्स मेजर एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एंड वाई एक्सिस, क्या सर दिखेगा। स्ट्रेट लाइन होगा ना। हाँ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, सही है। अभी इसमें लिखा है हाउ मच इज द मिनिमम रिक्वायर्ड सैम्पलिंग रेट in samples per second for a digital oscilloscope to capture a 15 megahertz sinusoidal signal। तो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है 15 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो हमारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहना चाहिए, वही हम लोग पूछ रहे हैं। तो अगर आपका सिग्नल कैसा है, अगर आपका सिग्नल ऐसा है, ठीक है, ये सिग्नल को आप अगर ऐसे ऐसे सैंपल्स लेते जाओगे और ये ऑसिलोस्कोप करते हुए सैंपल्स लेते जाते हैं ना, तो फिर आपको क्या सिग्नल दिखेगा, एक ऐसा सिग्नल दिखेगा जो थोड़ा सा मैच होगा, ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो ये ऐसे ऐसे होते जाएगा, ठीक है, वैसे आपका सिग्नल जाएगा। इसको बाद में आप एक लो पास फिल्टर या कुछ से अगर पास करोगे तो आपको अ, एक ऐसा सिग्नल वापस आ जाएगा, सिमिलर, एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं है पर थोड़ा बहुत सिमिलर सिग्नल आ जाएगा अगर आप उसको एक लो पास फिल्टर के थ्रू पास करोगे, ठीक है। अभी
हम लोग को देखना है कि कितना सैंपल्स लेने का जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत सारा सैंपल्स ले सकते हैं, क्योंकि उस पे एक लिमिट रहता है। एडीसी आपने पढ़ा ना, एडीसी को टाइम लेता है कन्वर्ट करने के लिए। वो एकदम तुरंत ऐसे बोलेगा नहीं कि इतना ही वैल्यू देगा। हाँ, तो एक टाइम लगता है। तो कभी क्या होता है, अगर मैं सिग्नल ऐसा लूँ, एक मैं सिग्नल यहाँ पे लेता हूँ, ये दिख रहा नहीं है, ये वाला। अगर मैं एक सैंपल यहाँ पे लूँ, फिर बाद में मैं एक सैंपल यहाँ पे लेता हूँ, फिर बाद में मैं एक सैंपल यहाँ पे लेता हूँ, फिर बाद में मैं एक सैंपल फिर बाद में यहाँ पे लेता हूँ। तो जो सिग्नल जो मेरे को बनेगा, बन के आएगा ना, जो सिग्नल जो ये बाद में जब भी रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ, तो वो सिग्नल क्या होगा, वो एक ऐसा सिग्नल होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसे पकड़ के उसके बाद ऐसा हो जाएगा, फिर बाद में वापस ऐसा हो जाएगा। और फिर अगर मैं लो पास फिल्टर की से पास करूंगा, तो मेरा सिग्नल जो आएगा वो ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल है, और ये मेरा सिग्नल जो आता है फाइनली, ये ऐसा हो जाता है। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन लॉस हो जाता है। तो कौन सा मेथड, कितना सैम्पलिंग रेट लेना चाहिए ताकि मिनिमम थोड़ा बहुत आइडिया आएगा मेरे सिग्नल के बारे में, वो आपका इससे आता है। एक शैनन सैम्पलिंग थ्योरम होता है, उसमें उन लोग क्या बोलते हैं कि this sampling frequency should be at least, it should be greater than or equal to twice into signal frequency। तो ये होगा ग्रेटर देन 2 into 15 मेगाहर्ट्ज। वो कितना हुआ आपका, 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। इसमें कुछ डाउट है? नो सर। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दिया हूँ ताकि आपको, आप सोच के समझ के देख सकते हैं कि कैसा क्यों ये हो रहा है ऐसे। आपको क्या, ये रट के नहीं जाना चाहिए कि 2 बार ही देना चाहिए, क्यों ऐसा 2 बार है। वो सब अगर आप समझेंगे तो आपको प्रोजेक्ट वो सब जब भी आप करोगे तो आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट है ये वाला फिगर है। इसमें भी हम लोग को ये फ्रीक्वेंसी ढूंढना पड़ेगा। अभी ये सिग्नल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट में अगर ड्रॉ करता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए कितना बार इंटरसेक्शन हो रहा है? हॉरिजॉन्टल में 4 बार हो रहा है। ठीक है। और वर्टिकल टेंजेंट के लिए? 3 बार। 3 बार होगा ना। मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, और हॉरिजॉन्टल के लिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और ये पॉइंट। तो इन लोग ने क्या दिया है कि आपका जो एफ एक्स है वो 250 हर्ट्ज है। एफ एक्स का फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है। तो आपका एफ आई कितना होगा, आपका एफ आई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू हॉरिजॉन्टल बाई वर्टिकल। तो वो कितना होता है, 250 into 4/3। वो क्या हुआ, 333.33। तो 333.33 हर्ट्ज। ठीक है।
तो मैं मैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको अभी कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे ये सम को सॉल्व करना है। बस टेंजेंट ड्रॉ करो और आपको आइडिया मिलेगा। हाँ, इसका मैं ये भी बनाता हूँ। नहीं है एक्चुअली, ठीक है, इसका नहीं है। तो इस हिसाब से आपको सिग्नल आ जाता है। जब जब आपको सिग्नल आ जाएगा। अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मैं पेज में जाता हूँ। ये मेरा सर्किट है, ठीक है। तो अभी इन लोगों ने क्या पूछा है कि वोल्टेज है 2.5 वोल्ट, फिर आर एक्स वैल्यू कितना है। तो हमारा वोल्टेज जो मेजर हो रहा है वो 2.5 वोल्ट, तो आर एक्स का वैल्यू हम लोग को ढूंढना है। तो ये एक लीनियर ओम मीटर का प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सर सबसे पहले मतलब बी भी बी को ये करेंगे, पहले कौन सा वोल्टेज है वो निकालेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर से 15 इंटू 1030 बाई 1030 प्लस 470। हाँ, वो वैल्यू कितना होता है। 10.3। तो ये आपका 10.3 वोल्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद इधर ये पीएनपी है तो उधर ऐड हो जाएगा 10.3 प्लस 0.7 यानी 11 वोल्ट हो जाएगा। तो ये 11 वोल्ट और हो जाएगा। ये 15 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 10,000। 15 - 11 डिवाइड बाई 10 की 4/10 की वो है आपका 0.4 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आपका उतना करंट जा रहा है। अभी जो वोल्टेज जो है 2.5 वोल्ट है, तो आपका आर एक्स कितना है, वोल्टेज बाई आई ई अप्रोक्सीमेटली ना, क्योंकि आई सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई। तो हम ये असम्पशन क्या है, यहाँ से जीरो करंट जा रहा है और ये आपका कलेक्टर करंट, पूरा कलेक्टर करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है। और आपका कलेक्टर करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एमिटर। तो इसलिए ये हुआ आपका 2.5 डिवाइड बाई 0.4 मिली एम्पियर। तो इसका वैल्यू कितना है। 6250। तो ये हो जाएगा आपका 6250 ओम। ओके। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। दूसरा एक एमिटर फॉलोअर का एक क्वेश्चन है।
ये आपका एमिटर फॉलोअर वोल्टमीटर का एग्जांपल है। इन्होंने क्या बोला है, आपका वीसीसी 15 वोल्ट है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ पीएमएफसी मीटर 4 मिली एम्पियर, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 300 ओम है, वीबीई 0.65 वोल्ट है और बीटा आपका 199 है। इसमें आपका वीसीसी हुआ आपका 15 वोल्ट, हाँ, आपका बीटा हुआ 199, आपका वीबीई आपका हुआ 0.65 वोल्ट, आपका आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन हुआ 4 मिली एम्पियर, और आपका इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब इसका इंटरनल रेसिस्टेंस वो हुआ आपका 300 ओम। ठीक है, तो आपका अभी आर एस ढूंढना है, आर एस का वैल्यू ढूंढना है। हम्म? तो उन लोग ने बोला है पहला पार्ट में कि ये हमारा कितना रेसिस्टेंस चाहिए आर एस to obtain a full scale deflection for V in equal to 10 volt। तो V in is equal to 10 वोल्ट, तो ये पॉइंट में वोल्टेज कितना होगा, ई में पॉइंट वोल्टेज कितना होगा, हम्म? 15 minus 10 minus 0.65. नहीं, ये आपका प्लस माइनस वीबीई है ना, तो आपका वीई इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, आपका वी एन माइनस वीबीई, आपका वी इन 10 है, आपका वीबीई कितना है 0.65, तो अभी कितना हुआ ये, 9.35. फिर 9.35 वोल्ट। अभी उन लोग ने बोला जो करंट, ये जो करंट जो जा रहा है ना शुड बी इक्वल टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 4 मिली एम्पियर है, तो उसका जो करंट है वो एक्चुअली वीई अपॉन आर एस प्लस आर इंटरनल। इसमें कुछ डाउट है? No. तो आपका आर एस प्लस आर इंटरनल शुड बी इक्वल टू वीई अपॉन आई, आपका वी हुआ 9.35, आपका आई हुआ फुल स्केल करंट 4 मिली एम्पियर, इसका वैल्यू कितना हुआ आर एस प्लस आर इन, आर इन तो दिया हुआ है 300। नहीं ये 9.35 डिवाइड बाय 4 बुक इनटू पावर माइनस 3, इसका वैल्यू कितना है, हम्म? 2337.5. वो हुआ 2337.5, तो आपका आर इंटरनल, तो आपका आर एस कितना हुआ 2337.5 माइनस 300, वो कितना हुआ, वो हुआ 2037.5 हुआ। ठीक है, हम्म? ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी ये आर एस वैल्यू हम लोग यूज करते हैं एस्टिमेट मीटर डिफ्लेक्शन इन परसेंटेज ऑफ फुल स्केल जब व्हेन वी इन इज इक्वल टू 5। अभी क्या हुआ, मेरा वी इन अभी 5 वोल्ट हो गया, अभी मेरा वीई क्या होगा, 5 minus 0.65.
हाँ, तो वो कितना है? 4.35। 4.35। ठीक है, आपका करंट कितना होगा? टीई डिवाइड बाई आर एस प्लस आर एन। वी आपका 4.35, आर एस प्लस आर एन 2337.5। इसका करंट कितना है? पॉइंट 00325। 0.00325। तो आपका, हाँ, 3.2 मिलियन। इतना ज्यादा? नहीं, ये 1.86 मिली एम्पीयर हो जाता है ना। हाँ सर सॉरी, हम 1337 की उसको 2337 करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए ठीक है। तो अभी उन लोग ने बोला कि परसेंटेज ऑफ करंट आई विथ रेस्पेक्ट टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो आई डिवाइड बाय आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन इनटू 100। जी सर 1.86 मिलियन हो रहा हाँ, सही सही। ये होगा 1.86 डिवाइड बाय 4 इंटू 100। तो इसका वैल्यू कितना होगा? 46.5। हाँ, सही। तो ये हुआ आपका 46.5%। तो समझ लो, पहले जब ये इनपुट वोल्टेज 10 हुआ तो मेरा 100% दिखा रहा था स्केल में। जब भी मैं इनपुट वोल्टेज को हाफ किया तभी 50% दिखाना चाहिए, पर 46.5% दिखा रहा है। तो ये है प्रॉब्लम, ये एमिटर फॉलोअर सर्किट का। ठीक है। यस सर। We look, it said determine the input resistance in kilo ohm of the emitter follower voltmeter for V in equal to 10। तो बोल रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो क्या पहला पॉइंट क्या है? मेरा V इज इक्वल टू 10 वोल्ट था, तो मेरा I इज इक्वल टू आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मेरा I इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर है। तो ये मेरा, ये करंट है। मतलब मेरा एमिटर करंट। So the emitter current is equal to 4 milliampere. The emitter current is equal to IC plus IB is equal to beta into IB plus। तो ये क्या हो जाता है? This is equal to beta plus 1 into IB. So my IB is equal to IE upon beta plus 1. IE का वैल्यू 4 milliampere, beta plus 1 is 199 plus 1, 4 into 10 to power minus 3 by 200। तो इसका वैल्यू कितना हुआ? 0.02 तो ये हो जाएगा आपका इंटू 10 2 into 10 to power minus 6। तो ये आपका 2 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। नहीं, ये आपको 20 होगा, 20 माइक्रो एम्पियर। तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है वो आपका वी इन अपॉन इनपुट करंट। तो द इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, मैं यहाँ से देख रहा हूँ सर्किट को, कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है। इनपुट ये वोल्टेज दिया हूँ, तो ये करंट इंटरनल करंट है। ठीक है। तो द इंटरनल करंट इज इक्वल टू आई बी, वी इन अपॉन आई बी। वी इन इज 10, आई बी इज 20 माइक्रो एम्पियर।
तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ? जीरो 0.5 मेगा ओम। हाँ, तो आपका एक्चुअली 500 किलो ओम है। ठीक है। अभी ये लास्ट का एक क्वेश्चन है जो मुझे भी समझा नहीं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है तो। आपको मुझे आइडिया आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करने के लिए? सर वो टेंजेंट लेके नहीं होगा ये वाला? टेंजेंट लेके इसका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट 2 होगा, वर्टिकल टेंजेंट तो 1 होगा या 2 होगा, वो पता नहीं ना, क्योंकि ये पॉइंट का क्या हो रहा है फ्यूचर में वो आइडिया नहीं है। देख के तो लग रहा है सर 3 वो इसको काउंट करे कि नहीं करे? किधर किधर 3 होगा? ये हॉरिजॉन्टल आपका वर्टिकल वाला। वर्टिकल वाला लग रहा नहीं कि 3 होगा, ये तो 1 या 2 लग रहा है। हॉरिजॉन्टल भी मेरे को सिर्फ 2 ही लग दिख रहा। हॉरिजॉन्टल तो 2 पता चल रहा है, वर्टिकल वाला। तो ये इसका मेरे को आइडिया नहीं है, तो आप उधर बाकी टीएस से देख सकते हैं और हम कर सकते हैं। ये वाला आपको सोचना पड़ेगा, मेरे को भी इसका आइडिया नहीं आ रहा है। ठीक है। हम्म, तो मैं एक रिकैप दे देता हूँ कि पहला हम लोग देखा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, बीजेटी क्या होता है। First we have seen what is a BJT, then we have considered emitter follower voltmeter. When we are measuring the voltage across the emitter, and that depends upon the voltage applied to the base. Then we have seen how we can generate an offset. Then we have seen what is the circuit to cancel the offset. And then we have studied emitter follower voltmeter. Where we found how to find the internal resistance. And then we checked the linear ohmmeter. How do you measure the resistance we checked? And then why a normal ohmmeter will not work? And why do we need a controlled current source and how it is generating a controlled constant current which we saw. Then we saw what is a ramp generator, how it depends on the capacitor voltage equation and the initial condition, and how depending upon the lower trigger point and upper trigger point, using a screw trigger, we were able to generate this voltage was generated. Then afterwards we studied Lissajous plots, what is the XY mode, how each signal changes, how it is plotted, which is shown over here. And then this is regarding the questions, whether the number of tangents are being used. So you have any questions? So Sangeeta Banerjee, do you have any questions? Okay, it applies if there are no questions, so I will end this session. Okay. Thank you for joining.